اچھا بھائی، یہ 9th کلاس کی میتھمیٹکس ہے اور اس کا اپنا ایکسرسائز ہے جی 1.3 اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے۔ بس سوال بالکل آسان سا ہے، جسٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں میٹریسز دیے گئے ہیں ان میں سے کون کون سے جمع کرنے کے لیے یا نفی کرنے کے لیے سوٹیبل ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کن کن قالبوں کو ہم آپس میں جمع نفی کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، ہم ان قالبوں کو آپس میں جمع یا نفی کر سکتے ہیں جن کا مرتبہ آپس میں برابر ہو۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ جن قالبوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہوگا، جن کا آرڈر آپس میں برابر ہوگا، ان کی ہم آپس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈیشن کے لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں یا ان کی ایڈیشن ہمارے پاس پاسیبل ہوتی ہے۔ اچھا بھائی دیکھیں، مثلاً آپ غور کریں قالب اے پر، اس کا ذرا آپ آرڈر چیک کریں، مرتبہ چیک کریں۔ اس کا آرڈر بنتا ہے 2/2، یعنی قطاروں کی تعداد ہمارے پاس 2 ہے اور کالموں کی تعداد بھی 2 ہے، تو ایک کا مرتبہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 2/2۔ اب یہ والا جو قالب ہے جس کا مرتبہ 2/2 ہے، یہ اس قالب کے اندر جا کر ایڈ ہوگا جس کا مرتبہ ہوگا 2/2۔ اب بھائی دیکھیں، اب ہمارے پاس جو جو ای قالب ہے، یہ والا، اس کا مرتبہ ہے جناب والا 2/2۔ اے کا مرتبہ بھی 2/2 ہے اور ای کا مرتبہ بھی 2/2 ہے، لہٰذا اے اینڈ ای آر suitable for addition، یعنی کہ اے اور ای آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اب آپ غور کریں بھائی بی پر، بی کا مرتبہ ہمارے پاس ہے 2/1، یعنی قطاروں کی تعداد ہمارے پاس 2 ہے اور کالموں کی تعداد ہمارے پاس 1 ہے، اس کا مرتبہ بنتا ہے 2/1۔ اگر آپ ڈی پر غور کرتے ہیں، اچھا ڈی کے جو ایلیمنٹس ہیں نا، یہ والے آپس میں جمع ہو جائیں گے، یہ بن جائے گا 3 اور 3۔ اب آپ بی پر غور کریں اور ڈی پر غور کریں، اس کا آرڈر 2/1 ہے اور اس کا آرڈر بھی 2/1 ہے۔ اب بی اور ڈی کا آرڈر آپس میں ایکول ہے، تو بی اور ڈی یہ آپس میں ایڈیبل ہیں یا سیوٹیبل فار ایڈیشن ہے، تو آپ نے بھی یہاں پر لکھنا ہے بی اینڈ ڈی آر سیوٹیبل فار ایڈیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ ذرا غور کریں بھائی سی پر، سی کا آرڈر ہمارے پاس ہے جی، اب دیکھیں اس میں قطاروں کی تعداد 3 ہے، کالموں کی تعداد 2 ہے، تو اس کا آرڈر بن گیا 3/2۔ اور ذرا بھی اس پر غور کریں، یہ ایڈیشن وغیرہ ہونے کے بعد، ایڈیشن وغیرہ کرنے کے بعد دیکھیں بھائی یہ قالب کیا بن جاتا ہے 3 2 1 + 1 2 ہوگا، -4 یہ 5 ہوگا اور یہ 3 ہوگا۔ اب آپ غور کریں سی پر اور ایف پر، ان دونوں کا مرتبہ یا ان دونوں کا آرڈر آپس میں برابر ہے، تو لہٰذا سی اور ایف آپس میں سوٹیبل ہیں۔ سی اینڈ ایف آر سوٹیبل فار ایڈیشن۔ یہاں پر بھی روک دو۔ کوشچن نمبر 2۔ اچھا بھی کوشچن نمبر 2 کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایڈیٹیو انورس معلوم کرنا ہے، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں جمعی معکوس، ایڈیٹیو انورس، ایڈیٹیو انورس، یا اردو میں ہم کہتے ہیں بھئی جمعی معکوس، یہ ہم نے بھئی معلوم کرنا ہے۔ مثلاً ہمارے پاس بھئی ایک قالب ہے A = 2 4 -2 اور 1۔ فرض کریں ہم نے بھئی A کا معلوم کرنا ہے جی، جمعی معکوس یا ایڈیٹیو انورس ہم نے معلوم کرنا ہے۔ بالکل بھی آسان سا کام ہے، آپ یہاں پر لکھیں گے A کا جمعی معکوس،
जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स, ये किसके बराबर होगा भाई? अब ए का जमी माकूस ये सिंपली बराबर होता है -a के, बस इसके बराबर होता है। मुराद ये है कि जो कालिब ए है इसके अरकान की अलामतें आपने तब्दील कर देनी है, तो वो हमारे पास हासिल हो जाता है भाई जमी माकूस। अब देखें मसलन ये जम्मा 2 है, ये बन जाएगा नफ़ी 2, जम्मा 4 नफ़ी 4, जम्मा 2 ये बन जाएगा नफ़ी 2 और जम्मा क्या बन जाएगा नफ़ी 1। सॉरी, जो नफ़ी 2 है ये बन जाएगा जम्मा 2। बस आपने भी ये करना है कि जमी माकूस मालूम करने के लिए तमाम अरकान के आपने भी अलामतें तब्दील कर देनी है, तो इस अंदाज से हमें हासिल हो जाता है जमी माकूस। इसी से मुतल्लिका एक और मैं समझा देता हूँ। मसलन f है, f इक्वल है √3 1 -1 और √2। अब आपने भी यहाँ पर मालूम करना है f का एडिटिव इनवर्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ f या f का जमी माकूस, f का जमी माकूस। ये याद रखें कि मैथमेटिक्स के अंदर उर्दू और अंग्रेज़ी का इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता, चाहे आप उर्दू में पढ़ें या अंग्रेज़ी में पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर नंबरिंग वगैरह सारी वो सेम होती है। तो लिहाजा आप हेडिंग चाहे उर्दू में दें या अंग्रेज़ी में दें, बुनियादी तौर पर सवाल को हमने एक ही अंदाज में हल करना होगा। बस हल्का फुल्का ये टर्म्स का फ़र्क होता है, जैसे हम यहाँ पर भी कहते हैं जमी माकूस, अंग्रेज़ी में कह देते हैं एडिटिव इनवर्स, और कोई फ़र्क नहीं होता। देखिए भाई f का जमी माकूस, इसको हम मैथमेटिकली ज़ाहिर करेंगे -f के साथ। अच्छा भाई देखें, अब ये करना है कि तमाम अरकान की अलामतें आपने तब्दील कर देनी है। इसके बाहर है जमा की अलामत, ये बना देनी है नफ़ी की -√3। ये +1 है, -1 होगा, ये -1 है, +1 होगा, और ये +√2 है, ये बन जाएगा -√2। इस अंदाज़ से आपने तमाम सवालों के अंदर जमी माकूस मालूम करने हैं। ये मैंने आपको 2 अज्जा नमूने के तौर पर आपको समझा दिए। अच्छा भाई, आगे सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 के अंदर आप देखिए भाई, हमें कालिब ए दिया गया है, बी है, सी है और डी है। आपने भी यही करना है कि इन कालिबों के इस्तेमाल करके आपने मुख्तलिफ़ किस्म की एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। मसलन पार्ट नंबर 1 देखें भाई, पार्ट नंबर 1 के अंदर अच्छा है कि a + 1 1 1 1, ये आपने एडिशन आपने मालूम करनी है, यानी a प्लस ये वाला कालिब। अच्छा भी देखें, पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो कालिब ए आपको दिया गया है, आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब देखें भाई, कालिब ए इसके बराबर है, तो आपने भाई इस कालिब की जगह इसकी वैल्यू लगा देनी है, और किसके बराबर है? -1 2 2 1, दरमियान में प्लस और 1 1 1 1। अच्छा भाई देखें, इन दोनों कालिबों के दरमियान है जमा की अलामत। बस आपने सिंपली ये करना है कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में जमा या तफरीक किया जाता है। यानी जो पहला एलिमेंट है ये जमा होगा पहले एलिमेंट में, दूसरा दूसरे में जमा होगा, तीसरा तीसरे में जमा होगा, चौथा चौथे में जमा होगा। इस अंदाज आपने करनी है एडिशन। अब भाई देखें, यहाँ पर -1 है। अच्छा याद रखें कि जमा के दौरान जब आप जमा करते हैं ना, दौरान जमा, अब एक बुनियादी बात याद रखें कि इनके साथ जो अलामतें होती हैं ना, बस आपने सिंपली उन्हीं अलामतों के साथ इन एलिमेंट्स के साथ आपने बस लगा देना है। मसलन आप देखें, यहाँ पर -1 है, आपने बस इसके साथ लगा देना है +1। इस अंदाज से बस आपने, यानी अगर इधर -1 होती हम यहाँ पर लगा देते -1, अब यहाँ पर +1 है, आपने लगा दी +1। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर भी 2 है,
यहाँ पर आपने लगा देना है +1, यहाँ पर भी 2 जमा 1, यहाँ पर भाई 1 जमा 1। इस अंदाज से आपने भाई एडिशन कर देनी है। -1 + 1 0 के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, ये भी 3 के बराबर आ गया और ये 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमने भी पहली हमने एडिशन मालूम कर ली। इसके बाद आप देखें, इसके बाद है जी मसलन आपने मालूम करना है जी, मैं थर्ड पार्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए भाई थर्ड हमारे पास है C + -2 1 3। इसके अंदर आपने भी ये वाली एडिशन करनी है। बिल्कुल आसान सा काम है कि पहले आपने ये करना है कि C की जगह आपने C की वैल्यू लगा देनी है। अब देखें भाई C की हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो देखें C है जी 1 -1 और 2 प्लस है और फिर ये वाला कालिब है -2 1 और 3। अच्छा भी मैंने अभी आपको समझाया कि दौरान एडिशन जमा के दौरान आपने ये करना है कि इनके साथ जो भी अलामतें हैं बस आपने उन्हीं अलामतों के साथ इनके अंदर आपने एडिशन कर देनी है। अब देखें इसके साथ माइनस की अलामत है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। अब क्या होगा 1 -2। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो मैंने उसी अलामत के साथ इसको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। इसके बाद है जी -1, इसमें ऐड होगा +1, फिर हम लिखेंगे 2 और साथ लिखेंगे +3। देखिए भाई 1 -2 -1 के बराबर होगा, -1 + 1 0 के बराबर होगा, 2 + 3 ये बराबर होगा 5 के। इसके बाद आते हैं जनाब पार्ट नंबर, अभी हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर आपने मालूम करना है जी 2a। अच्छा अब ये याद रखें भी एडिशन वाला सवाल नहीं है। इसके अंदर आप चेक करें कि 2 और a के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो मुराद ये है कि 2 और a के दरमियान ज़रब की अलामत है, मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। मुराद ये है कि आपने a कालिब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बुनियादी तौर पर मुराद है। अच्छा भाई देखें तो 2 को आपने भी यहाँ पर रहने देना है और यहाँ पर a की वैल्यू लगा दें। a किसके बराबर है -1 2 2 और 1। बस सिंपली आपने ये करना है कि 2 अंदर जाकर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 नफ़ी 1 के साथ भी ज़रब खाएगा, 2 के साथ भी ज़रब खाएगा, 2 के साथ भी और 1 के साथ भी। अब देखें 2 ज़रबे नफ़ी 1 ये नफ़ी 2 के बराबर होगा, 2 ज़रबे 2 4, 2 ज़रबे 2 4, 2 ज़रबे 1 2 के बराबर होगा। इस अंदाज से आपने भी मालूम करना है 2a। देखिए भाई इस सवाल के अंदर आपने मालूम करना है -1b। पहले आप ये करें कि -1 को आप बाहर रहने दें और यहाँ पर आपने b की वैल्यू लगा देनी है, यानी 1 -1। अच्छा आपने भी ये करना है कि -1 अंदर जाकर दोनों एलिमेंट से ज़रब खाएगा, -1 + 1 से भी ज़रब खाएगा और -1 -1 से भी ज़रब खाएगा। अब देखें जी इसकी अलामत है प्लस। अब -1 × +1 ये क्या बनेगा, जमा नफ़ी और 1 ज़रबे 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और -1 ज़रबे -1, अब देखिए भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और 1 ज़रबे क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो ये आ गया जी +1। ये आपने मालूम कर लिया -1b। अब हमने भी मालूम करना है -2 × c। अच्छा देखें -2 को आप बाहर रहने दें और यहाँ पर आपने c की वैल्यू लगा देनी है। अब देखिए c किसके बराबर है, 1 -1 और 2। अब देखिए भाई -2 अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये अलामतों का आपने भी ख़ास ख्याल रखना है। इसकी अलामत है प्लस, इसकी भी है प्लस। अब देखिए भाई -2 × +1, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 ज़रबे क्या होगा, 2 होगा, तो ये बन गया नफ़ी 2। नफ़ी 2 ज़रबे नफ़ी 1, नफ़ी नफ़ी जमा होगा और 2 ज़रबे किसके बराबर होगा,
बेशक जमा 2 लिख दें या खाली 2 लिख दें। अब नफ़ी 2 ज़रबे जमा 2, जमा नफ़ी नफ़ी होगा और 2 ज़रबे 2 क्या होगा, 4 होगा। इसको आप ऐसे लिख दें, नफ़ी 2 2 और नफ़ी 4। अच्छा भैया, अब आपने मालूम करना है जी 3D। 3 को बाहर रहने दें और यहाँ पर आपने भी D की वैल्यू लगा देनी है। D आपके सामने मौजूद है, 1 2 3 -1 0 और 2। बस सिंपली आपने ये करना है कि 3 अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से ज़रब खाएगा। अब देखिए भाई 3 ज़रबे क्या होगा, 3 होगा, 3 ज़रबे 2 6, 3 ज़रबे 3 9, 3 ज़रबे नफ़ी 1 नफ़ी 3, 3 ज़रबे 0 0 होगा और 3 ज़रबे 2 क्या होगा, 6 होगा। तो इस अंदाज से आपने भी क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सिंपली आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब इसके बहुत सारे अज्जा हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 अज्जा हैं। तो इनमें से मैं आपको नमूने के तौर पर एक समझा देता हूँ जी, दूसरी जो समझा देता हूँ और एक समझा देता हूँ 5वीं जुज़। देखिए भाई, पार्ट नंबर 2 आप चेक करें, 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0 और एंड पर आपने भी छोटी ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है। अच्छा भाई, रियाजी का एक बुनियादी कानून याद रखें, हमेशा जब हम सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं तो सबसे पहले हम हल करते हैं जी छोटी ब्रैकेट, यानी जो चीज़ छोटी ब्रैकेट के अंदर मौजूद होती है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं और बाकी जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं उनको हम बाद में सवाल के अंदर हम शामिल करते हैं और एडिशन वगैरह बाद में करते हैं। ठीक है, अब देखें, ये दोनों कालिब, ये वाला और ये वाला, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हैं। तो आपने भी सबसे पहले इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर बाद में जो जवाब बन जाएगा उसको मिलाएंगे बाहर वाले कालिब से। तो देखें भाई क्या होगा, इसको आपने तब्दील नहीं करना, इसको आप उसी हालत में लिख दें, 1 0 0 1 प्लस। अच्छा भाई, देखें कि इन दोनों के दरमियान है माइनस की अलामत। अब आपने दोनों कालिबों को आपस में माइनस करना है। तो भाई माइनस कैसे करते हैं कि आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम जमा करते हैं उसी अंदाज से नफ़ी करते हैं, यानी आमने सामने वाले एलिमेंट्स को आपस में हम नफ़ी कर देते हैं। अब देखें भाई, 0 -1 होगा, इसके बाद है भाई 2 -1 होगा, 3 -1 होगा और 0 -0 होगा। अब देखें भाई, 1 0 0 1 प्लस, इनकी आपस में सब्ट्रैक्शन करें, 0 -1 -1 होगा, 2 -1 1 होगा, 3 -1 2 होगा और 0 -0 0 के बराबर होगा। अब देखिए भाई, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास ये कालिब जवाब आ गया। अब आप देखिए कि इन दोनों कालिबों के दरमियान है जमा की अलामत, तो लिहाजा इनको आपस में आपने जमा करना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि दौरान जमा हम क्या करते हैं, इनके साथ जो भी अलामतें होती हैं हम वही उन्हीं अलामतों के साथ हम ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर ऐड कर देते हैं। अब देखें भाई, इसके साथ है -1, अब क्या करेंगे, 1 -1, इसके बाद है 0 +1 होगा, 0 +2 होगा और 1 +0 होगा। ये भी हमारा आंसर बन गया 1 -1 0, 0 +1 1, 2 और 1। अच्छा भी देखिए, इन दोनों कालिबों के दरमियान जमा की अलामत है, यानी सिंपली आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है। अभी मैंने आपको समझाया कि एडिशन के दरमियान आपने क्या करना है कि जो इनके साथ अलामतें हैं उन्हीं के साथ आपने इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर देना है। पहले आप बेहतर अलामतें लगा दें, ये प्लस है और ये भी प्लस होगी, और याद रखें हम 0 के साथ भी ना जमा की अलामत लगाते हैं और ना नफ़ी की अलामत, याद रख लें। अब देखिए, बस आमने सामने वाले एलिमेंट्स को हमने ऐड कर देना है।
اب کیا کریں گے 1 اور ساتھ لکھ دیں گے +1. اس کے بعد آپ نے بھی لکھنا ہے 2 +0 لکھ دیں. اس کے بعد ہے جناب 3 اور ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے -2. اس کے بعد ہے بھائی 2 ساتھ آپ نے لکھنا ہے -2. اس کے بعد ہے بھائی 3 ساتھ آپ نے لکھنا ہے -1. اس کے بعد ہے 1 +0 کرنا ہے. اس کے بعد ہے بھائی 3 +0 کریں گے 1 اور ساتھ لکھیں گے +2 اور اینڈ پر لکھیں گے 2. اور دیکھیں اس کے ساتھ نفی کی علامت ہے. آپ نے یہاں پر بھی لکھ دینا ہے نفی، یعنی نفی 1. بس بھی جہاں پر ایڈیشن کرنی ہے، جہاں پر ایڈیشن ہے وہاں پر آپ ایڈیشن کر دیں، جہاں پر سبٹریکشن ہے وہاں پر آپ نے سبٹریکشن کر دینی ہے. اب دیکھیں 1 + 1 کیا ہوگا 2 2 + 0 2 3 - 2 1 2 - 2 0 3 - 1 2 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 اور 2 - 1 کیا ہوگا 1 کے برابر ہوگا. تو یہ آج ہم نے بھی کوشچن نمبر 4 تک میں نے آپ کو سمجھا دیے، اور انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں وہ کل میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر